The nation is set to mark its annual tribute to ordinary Indians making extraordinary contributions at home and beyond by honoring them with the Padma Awards ahead of the 77th Republic Day celebrations. At least 45 people have been selected for having demonstrated excellence in their respective fields despite personal adversities and for their enduring contributions to society at large. Padma Awards are conferred to individuals for serving the nation irrespective of their community, religion, caste or creed, including individuals from marginalized, backwards and Dalit communities, primitive tribes and from remote and difficult terrains. The list includes names of the individuals who have devoted their lives to serving women, children, Dalits and tribal communities, to advancing healthcare, education, livelihoods, sanitation, sustainability and in preserving India's indigenous heritage. In the field of literature and education, Charan Hembram from Odisha and Anke Gowda from Karnataka will be conferred the Padma Shri, while Mir Haji Bhai Kasam Bhai from Gujarat, Raghuveer Tukaram Khedkar from Maharashtra and Khemraj Sundariyal from Haryana will be conferred the Padma Shri in the field of art. Rajasthapati Kaliyappa Gounder from Tamil Nadu will be conferred the Padma Shri in the field of art as well. A veteran bronze sculptor with nearly 5 decades of mastery, he founded the Balamurugan Bronze Artworks. He is known for large-scale sacred sculptures that blend classical Agama traditions with contemporary craftsmanship. मेरे लिए स्वयं के लिए तो मैं खुशी की बात नहीं समझता, लेकिन ये माध्यम से पहले तो मेरे संशोधन के कारण किसानों का उपज बढ़ गया है, परंतु सब किसान कहीं प्रसिद्धि मिले तो उसके पीछे दौड़ते हैं। ये अभी आप लोगों के माध्यम से मेरा संशोधन किसानों के पास जाएगा तो किसान पूरा ये टेक्निक से कपास का उपज देने, कपास का अपनाएगा टेक्निक और उसका उपज बढ़ जाएगा। किसानों का उपज बढ़ना ये टेक्निक से, ये मेरे लिए आनंद की बात है। किस तरह से आनंद व्यक्त करते हैं? आनंद तो यानी आनंद व्यक्त करने की कोई पद्धति नहीं, पटाखा फोड़ना नहीं, ऐसा नहीं, परंतु आनंद इस तरह की, और किसानों को मैं आपके माध्यम से, प्रचार प्रसिद्ध माध्यम से मैं और विनती करूंगा कि आप ये टेक्निक आप जरूर अवलंबन करो और ये करने लगे तो ये किसानों के पास ये टेक्निक कैसे जाएंगे, यही मेरा एक साधन है। मीर हाजी भाई कासम भाई, गुजरात, पद्मश्री अवॉर्डी। मैंने जो काम किया है रामलाल व्यास के साथ, मेरी 2 पीढ़ी मैंने बजाया, मेरे फादर ने बजाया। शुरुआत मेरे फादर से हुआ, फिर बाद में मेरे से शुरू हुआ कि प्राण भाई के साथ, दिवाली बहन के साथ, भिखुदान भाई के साथ, लाखा भाई के साथ, प्रफुल्ल भाई के साथ, अच्छा सबके साथ मैंने साझेदारी करी। अच्छा दुनिया में कोई वस्तु मैंने बाकी नहीं रखा। अच्छा गायों के लिए भी मैंने प्रोग्राम 20,000 प्रोग्राम किया। मेरे लिए तो गौरवपूर्ण है ही, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर से प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं और साहित्य में जो लोग तल्लीनता से जुटे हुए हैं, उन सब के लिए भी गौरव की बात है। जहाँ तक साहित्य का सवाल है तो मेरी भूमिका मुख्य रूप से समीक्षाओं पर आधारित है और स्वतंत्र रूप से भी मैंने कुछ लिखा है। उनमें शब्द का विचार पक्ष सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। दूसरी पुस्तक जो मैंने लिखी है संस्कृति, समाज और साहित्य, ये भी काफी लोकप्रिय हुई और काफी तेजी से हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा
वितरित की गई है आदिवासी क्षेत्रों में। शब्द के विचार पक्ष को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने आज से करीब करीब 15 वर्ष पहले The Padma Awards for the year 2026 being announced on the occasion of the Republic Day, always announced a day before Republic Day, that's the 25th of January. Some of the other awardees include former Kerala Chief Minister, the late V.S. Achuthanandan, to receive the Padma Vibhushan Award posthumously. Playback singer Alka Yagnik has been conferred with the Padma Bhushan Award. And former Uttarakhand Chief Minister Bhagat Singh Koshyari has been awarded the Padma Bhushan as well. India has officially announced the Padma Awards for the year 2026, one of the country's highest civilian honours, recognizing exceptional service and excellence across a wide range of fields. The awards announced on the occasion of the Republic Day are given in 3 categories. Bear in mind, there is the Padma Vibhushan, the Padma Bhushan and Padma Shri, honouring contributions in art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil service and many other fields as well. For the year 2026, the President of India has approved the conferment of 131 Padma Awards, including 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. The list also includes 2 duo cases, which are counted as a single award each. Among the awardees, 19 of them are women, including Padma Bhushan Alka Yagnik on your screens now, while 6 recipients are foreigners, NRI, PIO or Person of Indian Origin, or Overseas Citizen of India or OCI categories, highlighting the global dimension of India's civilian honours. The list also includes 16 posthumous awards paying tribute to individuals whose contributions continue to inspire the nation. The Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service. The Padma Bhushan is distinguished service of a high order, and the Padma Shri for distinguished service in any field. The awards will be formally conferred by the President at ceremonial functions held at the Rashtrapati Bhavan, usually during March or April, celebrating service, excellence and commitment to the nation. The list of the Padma awardees for the year 2026 being officially announced and includes Malayalam film actor and legend Mammootty, who receives the Padma Bhushan Award this year. Former Jharkhand Chief Minister Shibu Soren receives the Padma Bhushan Award this year. There is BJP senior leader and former MP Vijay Kumar Malhotra, who's been awarded the Padma Bhushan as well. And it comes to the names of the over 100 Padma Shri awardees this year. There is cricketer Rohit Sharma, who gets the Padma Shri Award this year. Apart from India's women's cricket team member Harmanpreet Kaur, who's awarded the Padma Shri Award again. And talking about cricketers, ex-cricketer Praveen Kumar too receives the Padma Shri Award this year. The distinguished list of Padma awardees being announced by the Indian government on the eve of the 77th Republic Day celebrations. It's the annual tribute to the extraordinary Indians making extraordinary contributions at home and beyond, bear in mind, because the list includes over a dozen foreigners or PIOs, persons of Indian origin, and OCI cardholders or overseas citizens of India. There is that adding that global dimension to India's highest honours. The honours recognize exceptional service and excellence across a wide range of fields, as everything from popular
sectors like cricket and film music like Rohit Sharma and Alka Yagnik respectively. There is also Padma Awardees from those that don't make headlines on a daily basis, like those who have made enduring contributions to tribal art, rural healthcare, and rural livelihoods. People who have contributed to society in their very unique way in the smallest of regions, away from the spotlight. The awards will be formally conferred by India's President Draupadi Murmu at ceremonial functions that will be held in the Rashtrapati Bhavan, most likely in the month of March or April. But the list gets announced a day before Republic Day. 45 grassroots change makers, as I've been talking about, who will be conferred with the Padma Awards. Several unsung heroes and famous heroes, including Dharmendra, set to be presented with the Padma Awards. President has cleared 131 Padma Awards for this Republic Day, including 5 Padma Vibhushan, the highest honor, 13 Padma Bhushan, and over 100 Padma Shri. 19 women among Padma Awardees, 16 of the Padma Awardees announced posthumously in honor of their enduring contributions. From popular names like Hindi movie singer Alka Yagnik and cricketer and former India captain Rohit Sharma, and the women's team, from the women's team Harmanpreet Kaur to lesser known figures from the grassroots level. Padma Awardees encompassing a wide gamut of Indians who have made outstanding contributions. फितरी सी बात है कि बहुत खुश हूँ कि मेरा नाम भी ऐसे लोगों में शामिल हो गया जिन्होंने वाकई तौर पर ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में कुछ नुमायाँ कारनामा अंजाम दिया है। तो उन लोगों में मेरा नाम आना मेरे लिए इससे बढ़कर कोई खुशी की बात नहीं। इससे पहले भी मुझे कई अवार्ड्स और इनामात मिले हैं, लेकिन ये जो एज़ाज़ है पद्म श्री, ये बहुत कम लोगों को मिलता है और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में नुमायाँ कारकर्दगी दिखाने वालों को ही मिलता है। आज सुबह सवेरे मुझे ये ख़बर मिली तो बहुत खुश हुआ कि आज भी कुछ लोगों का काम सराहा जाता है, जाना जाता है। तो यानी कि जब सुबह सवेरे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किसी ने मुझे फ़ोन किया तो उसको मेरी किताबों के नाम भी मालूम थे। And now we have my colleague Anand Pandey joining us now. Anand Pandey जी, इस बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 131 नामों को चुना है पद्मा अवार्ड देने के लिए। बिल्कुल, इस बार जो पद्मा पुरस्कार दिए जा रहे हैं उसमें कुल 131 लोगों को ये पद्मा पुरस्कार इस बार दिए जाएंगे। उसमें से 5 जो पुरस्कार हैं वो पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री अवार्ड है। इस तरह से कुल 131 2026 के लिए पद्मा पुरस्कार दिए जाएंगे। और अगर हम इस लिस्ट की बात करें तो इसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं। जैसे कि अगर हम कुछ बड़े चेहरों की बात करें तो फिल्म एक्टर धर्मेंद्र, जिनका हाल ही में निधन हुआ था, उनको भी पद्म विभूषण दिया गया है। इसके साथ साथ जो वीएस अच्युतानंदन, जो कि केरल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको भी मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। और साथ ही साथ पी नारायणन है, एन राजन है, केटी थॉमस है, इन लोगों को भी पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। इसके साथ साथ कुछ और अगर हम नामों की बात करें, जो पद्म भूषण है उसमें अलका याग्निक, जो कि हिंदी फिल्मों में इन्होंने लगभग हजारों से ज्यादा गाने गाए हैं, सिंगर है, इनको दिया गया है। भगत सिंह कोश्यारी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, महाराष्ट्र के गवर्नर रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको भी पद्म भूषण देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ ममूटी जो है वो केरल से आते हैं, फिल्मों में काम करते हैं, आर्ट के क्षेत्र में इनको पुरस्कार देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ पीयूष पांडे एडमैन, आपको याद होगा कि इन्होंने जो एड बनाए हैं लोगों के अभी तक जुबान पे, उनको भी पद्म भूषण देने का ऐलान किया गया है। मरणोपरांत इनको दिया जाएगा। इसके साथ साथ और बहुत सारे चेहरे हैं। शिबू सोरेन, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं,
उनको भी पद्म विभूषण मरणोपरांत देने का ऐलान किया गया। उदय कोटक है, वीके मल्होत्रा जो कि बीजेपी के नेता रहे हैं, दिल्ली में जब सरकार नहीं थी, जब आजादी के बाद से, तो यहाँ भी उन्होंने पद ग्रहण किया तो उनको दिया गया। खेलों से जुड़े रहे थे। इसके साथ विजय अमृतराज को स्पोर्ट्स के लिए दिया गया है। तो इस तरह से जो सरकार की तरफ से सूची आई है उसमें ऐसे अलग अलग सेक्टर्स के लोगों को जो सर्वोच्च पुरस्कार है पद्म भूषण अवार्ड से उससे देने का ऐलान किया गया। तो ऐसे में जो एक नाम आपको हम बता दें, जो महिला क्रिकेट टीम के सदस्य हरमनप्रीत कौर, उनको भी पद्म श्री देने का ऐलान किया गया है। तो इस पद्म पुरस्कारों की जो सूची है उसके जरिए सरकार समाज के जो अलग अलग तबके हैं, अलग अलग सेक्टर्स है, स्पोर्ट्स हो, फिल्म हो, आर्ट हो, कल्चर हो, लिटरेचर हो, ट्राइबल आर्ट हो, इन तमाम क्षेत्रों के अलग अलग लोगों को इन पुरस्कारों से नवाजने का फैसला किया है। कल 26 जनवरी है, 26 जनवरी के ठीक एक दिन पहले इन पुरस्कारों का ऐलान किया जाता है। तो उसके चलते आज इसका ऐलान किया गया और आने वाले समय में बताया कि लगभग 26 जनवरी के लगभग एक महीने के अंदर ये पुरस्कार जो अलग अलग समारोह में देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू वो देंगे। Anand Pandey there joining us with the latest on the list of Padma Awardees. आनंद पांडे जी, ये कहने की बहुत ज़रूरी है इस वक्त की इस बार 45 लोग जो जिन्हें ग्रास रूट्स चेंज मेकर्स कहते हैं उन्हें पद्मा पुरस्कार दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। और इसमें जो ये सूची जो पहले आई थी, जो अनसंग हीरोज की जिसका जिक्र आपने किया था, उनकी सूची पहले आई थी पद्मश्री अवार्ड की। उसमें ऐसे लोग थे जो कि तमाम चैलेंजेस के बावजूद, तमाम ऑब्स्टेकल्स के बावजूद उन्होंने समाज, देश और सोसाइटी के लिए काम किया है, देश के लिए काम किया है। वो अलग अलग ऐसे एरियाज उन्होंने काम किया है जो कि अमूमन जो है जिसमें लोग काम नहीं करते या फिर उनको ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलता। तो ऐसे अनसंग हीरोज को देश भर से चुना गया है। वो पद्मश्री की जो सूची में उसमें 45 लोग ऐसे हैं, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, और ये लोग हैं जिन्होंने ऐसी भाषाओं को, ऐसी लिपि को, ऐसे आर्ट को प्रिजर्व करने का, उसको आगे बढ़ाने का, उसको जीवित रखने का और आगे की जो जनरेशन से पास करने का पे उन्होंने काम किया है, जिसको तरफ कम ही ध्यान जाता है। इसके साथ साथ मार्शल आर्ट, जो हमारे इंडिया की जो मार्शल आर्ट है, जो कि जिसका कि अब धीरे धीरे वो भी खत्म होती जा रही है, उसको भी रिवाइव करने का काम हो, या फिर मेडिकल के क्षेत्र में हो। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि मानव दुग्ध बैंक, यानी कि जो ऐसे बच्चे जो माए अपने नवजात बच्चों को, नेटल्स को वो दूध नहीं पिला पाते, उनके लिए एक बैंक बनाया जाए, इस क्षेत्र में काम किया है। ऐसे लोग, ऐसे चेहरे जिन्होंने अपना घर, अपनी जमीन, अपना जायदाद बेचकर बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनवाई है, उनके लिए बुक्स रखी है, उनके लिए स्कूल बनवाए हैं। तो ऐसे तमाम अलग अलग सेक्टर्स के लोग, ऐसे लोग जो कि भले कल तक गुमनाम थे लेकिन आज वो गुमनाम नहीं है। आज उनको पूरा देश जान गया जैसे ही उनको पद्मश्री पुरस्कार देने का ऐलान किया गया। और यही मकसद भी है कि ऐसे गुमनाम चेहरों को उनको समाज के बीच लाया जाए, समाज को उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया जाए, ताकि उनको रिकॉग्निशन मिले, ताकि उनका जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो तो लोगों को पता चले ही चले, साथ ही साथ बाकी जो लोग हैं देश के, वो भी इससे और मोटिवेट हो और वो भी समाज, सोसाइटी और देश के लिए ऐसे काम करें। Anand Pandey there getting us that perspective on the awardees this year. 45 grassroots change makers, people who work at the grassroots level, among other famous names like the late actor Satish Kaushik and Alka Yagnik, a popular singer. आनंद पांडे जी, इसमें ये भी कहना है कि दुख से ये भी कहना है कि मतलब जो 16 जो है इस बार वो पोस्टमसली दिया जा रहा है पद्मा अवार्ड्स इस साल। जी बिल्कुल। धर्मेंद्र हो या फिर शिबू सोरेन हो, विजय कुमार मल्होत्रा हो, ये ऐसे लोग हैं जिनको पोस्टमस जो ये अवार्ड दिया जाएगा। लेकिन ये अवार्ड जो है वो ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो इनका योगदान है पब्लिक के क्षेत्र में हो, या फिर फिल्म के क्षेत्र में हो, या फिर कल्चर के क्षेत्र में। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि एक नाम रोहित शर्मा को है। रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर है, भारतीय टीम के कप्तान रहे हैं, उनको भी पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। तो ऐसे में जो आपका रिकॉग्निशन दिया जाता है, आपने कोई काम किया है, समाज में अपना योगदान दिया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, तो आप जीवित हो या फिर आपको पोस्टमस दिया जाए, तो उसमें एक रिकॉग्निशन दिया जाता है कि बाकी लोग भी आपसे सीखे और आपसे सीखे और आप समाज में अपना योगदान दे। शिबू सोरेन जो कि जिनको
झारखंड जो राज्य जो अलग सेपरेट स्टेट बना था उसके लिए शिबू सोरेन ने आंदोलन किया था और उसी आंदोलन का नतीजा है उन्होंने पहले ट्राइबल राइट्स की बात की, उन्होंने ट्राइबल के जो हक है उनको दिलाने की बात की और जब उनको लगा कि सिर्फ हक की बात से काम नहीं चलेगा, हमको इसके लिए एक सेपरेट स्टेट चाहिए, तो उन्होंने उसको आंदोलन किया। बकायदा उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई झारखंड मुक्ति मोर्चा और उन्होंने आंदोलन किया और जिसका नतीजा है कि झारखंड आज एक सेपरेट स्टेट है। तो उनका जो योगदान था ट्राइबल्स के अपलिफ्टमेंट को लेकर और झारखंड एक अलग स्टेट बनाने को लेकर, तो उनको ये पोस्टमस अवार्ड दिया जाएगा। धर्मेंद्र जो कि हीमैन थे, हैंडसम थे और जिनको ये कहा जाता है कि वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के, इंडियन सिनेमा के सबसे जो बेहतरीन एक्टर्स थे और साथ ही साथ जो सबसे हैंडसम थे, उनकी हाल ही में उनका देहांत हुआ था। उन्होंने जिस तरह से यूथ को इंस्पायर किया, पंजाब से आते थे लेकिन जिस तरह से पंजाब से लेकर और फिल्म स्टारडम तो उनकी जो जर्नी रही, उस अपनी जर्नी में उन्होंने बहुत सारे यूथ को इंस्पायर किया, बहुत सारे एक्टर्स को इंस्पायर किया और न सिर्फ उन्होंने मुंबई में, न देश में, बल्कि पंजाब में जहां से वो आते थे, तो इसको लेकर उनको भी पोस्टमस ये अवार्ड दिया जा रहा है। और साथ ही साथ हम आपको वीके मल्होत्रा जो दिल्ली में बीजेपी की राजनीति रही है उसके कुछ एक चेहरे जो रहे हैं वो वीके मल्होत्रा रहे। वीके मल्होत्रा खेल से भी जुड़े रहे और जब दिल्ली जो है जब राजधानी नहीं बने, जो एक राज्य नहीं बना, तो उसके पहले जो यहाँ काउंसिल हुआ करती थी तो काउंसिल के लिए भी चुनकर आए थे। तो ऐसे में न सिर्फ उन्होंने यहाँ पर बीजेपी को जिंदा करने में मदद की, बल्कि दिल्ली जो आज दिल्ली का जो शेप हम देखते हैं उस दिल्ली का शेप को तैयार करने में भी वो एक वीके मल्होत्रा का बड़ा योगदान रहा। तो ऐसे में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो स्पोर्ट्स में हो या पब्लिक लाइफ में हो या पॉलिटिक्स में हो, उसको देखकर उनको पोस्टमस ये अवार्ड देने का फैसला किया गया है। रोहित शर्मा क्रिकेटर है और आइकॉन है, भारत को उन्होंने कई कप दिलाए हैं और उन्होंने जिस तरह से वो मैदान के बाहर या मैदान का जिस तरह से वो खेलते हैं या फिर जो उनका कंडक्ट रहा है वो आज यूथ को इंस्पायर करता है, कभी बड़ी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे हैं, युवाओं को उन्होंने क्रिकेट की तरफ मोड़ा है। तो ऐसे में रोहित शर्मा हो या फिर हरमनप्रीत कौर जो कि महिला क्रिकेट है और आज जो महिलाओं के लिए एक आइकॉन है क्रिकेटर के तौर पे, तो उनको भी ये अवार्ड दिया जाएगा। तो जाहिर तौर पे जो इस बार की सूची है, जो लिस्ट है और जिस तरह से कुल 131 जो अवार्ड दिए जाएंगे उसमें ऐसे लोगों को उसमें शामिल किया गया जो अनसंग भी रहे हैं, जो यूथ भी है, जिन्होंने लोगों को इंस्पायर भी किया है। वो पब्लिक लाइफ है, पॉलिटिक्स है, आर्ट है, कल्चर है, ट्राइबल आर्ट है, रूरल अपलिफ्टमेंट है या फिर वीमेन एम्पावरमेंट है। तो ऐसे तमाम लोगों को इस बार 131 की जो लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है और उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए उनको इस बार पद्मा पुरस्कार दिए जाएंगे। आनंद पांडे जी, अभी ये भी कहना जरूरी है कि इस बार जो पद्मा अवार्डीज जो हैं वो ज्यादातर के साउथ इंडिया से हैं, साउथ डोमिनेट कर रहा है इस पद्मा अवार्डीज के लिस्ट को और इस साल तो दोनों तमिलनाडु और केरला में इलेक्शंस भी होने वाले हैं। इसको हम ऐसा बात कह सकते हैं कि साउथ से डोमिनेट कर रहे हैं लोग, ज्यादातर साउथ के इसमें लोग, केरल हो, तमिलनाडु हो या पुडुचेरी हो। लेकिन अगर हम नॉर्थ इंडिया देखें तो नॉर्थ इंडिया के लोगों का भी इसमें अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन है। आप ये कह सकते हैं कि वीएस अच्युतानंदन जो कि लेफ्ट के नेता है, केरल के मुख्यमंत्री रहे, उनको भी पोस्टमस ये अवार्ड दिया जाएगा। केरल में चुनाव होने जा रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि केरल के लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश है कि केंद्र में जो बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली जो सरकार है, वो पॉलिटिकल आधार पर वो भेदभाव नहीं करती। अगर किसी ने अच्छा काम किया, वो भले किसी पार्टी का हो, किसी भी विचारधारा का हो, अगर उसने समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए और पॉलिटिक्स में अपना योगदान दिया है, पब्लिक लाइफ में उसका कंडक्ट अच्छा रहा तो उसका अवार्ड देते हैं। तो बीजेपी कल को ये कहेगी और जाहिर तौर पर कहना भी चाहिए कि हमने अवार्ड देने में कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया। उसी तरह तमिलनाडु की आपने बात की, केरल में ममूटी जो कि फिल्मों में भी काम करते हैं, आर्ट में भी काम करते हैं, उनको अवार्ड दिया जा रहा है। तमिलनाडु से बहुत सारे चेहरे हैं जो कि सूची में, पुडुचेरी से बहुत सारे चेहरे हैं। तो इसके पीछे एक वजह ये भी आप कह सकते हैं, जो कि अपोजिशन लोग भी कहेंगे कि चूंकि इन राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं तो उसमें ज्यादातर लोगों को वहां से शामिल किया है। लेकिन कर्नाटक से भी इस सूची में बहुत सारे ऐसे नाम हैं। कर्नाटक में भी हाल फिलहाल चुनाव नहीं होने जा रहा, चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि अपोजिशन सवाल उठाएगा, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप ये कह सकते हैं कि पिछले सालों में या पिछले एक दशक में जिन लोगों को अवार्ड दिया है उसमें ज्यादातर जो है वो नॉर्थ इंडिया से रहे हो। तो ऐसे में जो अनदेखी हुई हो साउथ इंडिया के जो ऐसे कंट्रीब्यूटर्स है, अनसंग हीरोज है, तो उस कमी को या उस जो गलत हुआ है उसको करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा से ज्यादा साउथ से लोगों को उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके रिकॉग्निशन देकर और साथ ही उनको अवार्ड देकर।
आनंद पांडे देर जॉइनिंग अस। आनंद पांडे जी, जस्ट एक आखिरी बात, ये अभी तक हमें ये जानकारी नहीं है कि कभी मार्च में या अप्रैल में इसकी ये जो सेरेमनी है जिसमें दिया जा रहा है ये पद्मा अवार्ड्स पुरस्कार, उसका डेट या तारीख हमें अभी तक की जानकारी नहीं है। जी देखिए, अभी इसको क्योंकि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के ठीक पहले इसको अनाउंस किया जाता है पद्मा अवार्ड्स के, वो आज, चूंकि कल 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, तो उसके पहले आज अनाउंस किया गया है। अभी कुछ देर में 7 बजते ही जो देश की राष्ट्रपति है वो नेशन को एड्रेस भी करेंगी। और जो पद्मा अवार्ड्स है वो जनरली मार्च अप्रैल में दिए जाते हैं, वो 2 या 3 बार में दिए जाएंगे। क्योंकि नंबर ज्यादा है, 131 लोग हैं, तो एक दिन सबको अवार्ड देना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में 3-4 दिन में ये अवार्ड दिए जाएंगे। उसके लिए बकायदा नोटिफिकेशन आएगा, बकायदा राष्ट्रपति भवन से, क्योंकि इसमें समय लेना पड़ता है, राष्ट्रपति का समय लेना पड़ता है, उनका अपॉइंटमेंट देखना पड़ता है, और इसको होम मिनिस्ट्री जो है कंडक्ट करती है। क्योंकि जो अवार्ड है ये सब होम मिनिस्ट्री के जरिए होते हैं, तो ऐसे में होम मिनिस्ट्री के से समय लिया जाएगा राष्ट्रपति से। जब राष्ट्रपति जो समय देंगी तो उसके बाद संभवतः मार्च और अप्रैल में इन अवार्ड्स को दिया जाएगा। Anand Pandey joining us as we get you the latest on the Padma Awards for the year 2026 announced on the eve of the 77th Republic Day celebrations.